grace. Our Vice Principal, Reverend Father Kulkan, our Headmistress, Reverend Sister Bensi, and all dear parents. It's a day of our kindergartens with immense joy and hope. Good morning. Ma'am, while coming here, I went to the back street and I was thrilled to see the tiny dolls ready to perform, standing in line in beautiful costumes, with confidence in their personalities, faith in their minds, enthusiasm in their heart, and radiant smile on their faces. How pure and beautiful they are. Someone has rightly said, the soul is being healed by weighing the children. Yes, you are very true, ma'am. So here we have Expression Day, which offers a unique platform to children to showcase their amazing talents, from dancing to drama, from song to act, and many more. On behalf of our Fidelity family, I would like to extend a warm welcome to our Honorable Chief Guest, Mr. Atul Kumar Srivastava, Editor of Amar Ujala. Accepted our invitation and joined us today. Our Honorable Chief Guest, Mr. Atul Kumar Srivastava, is the editor of Amar Ujala. He has completed his MA LLB from Gorakhpur, Uttar Pradesh. Currently, he is residing in Dehradun, Uttarakhand. He is having an experience of 32 years in the field of journalism. He has worked as a script writer in All India Radio for 4 to 5 years. He has published many political, legal, social news in different newspapers and magazines of our country. He is a person with multi-faceted personality, being an author and writer. He has published many stories and poems also. He was also awarded Premchand International Award by Norway. He has reported the Nursing Rao scam, MMMP's bribe scam, Kargil war, Lok Sabha proceedings. His other achievements are Delhi High Court, Supreme Court reportings, and coverage of the 1997 historic programs at the Rajpath. Theme of our program is Colors of Life. Nature has blessed us. Its unique and uncountable colors. Keeping the colors of life in mind, we are here to inculcate these beautiful colors in the form of values. We pray with a hard work and dedication and your cooperation, these little angels, which imbibe the precious values of life, which will help them to become a good human being. Light symbolizes brightness and prosperity. As sun expels the darkness of light, similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. To make this morning glow and to spread Almighty's grace and divine energy in the surrounding, I invite our most respected chief guest, Mr. Atul Kumar Srivastava, our Principal, Reverend Father Dr. Robert Verghese, our Vice Principal, Reverend Father Kulkan, our Headmistress, Reverend Sister Bensi, Parent Representative, Ms. Rubika, Teacher Representative, Sabha Ma'am, and Student Representative, Little Angel Nimisha, to please come forward to light the lamp.
as we are going to begin this program. Amen. The beauty of sunset, the majesty of the ocean, the wonder of a newborn baby. God's creation is all around us, and everything that we can see and everything we cannot see, it all comes from God. As dance is one of the most divine form of art, here we have a prayer dance for bringing presence of Almighty amongst us. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Welcoming to someone create quite impression over them. Also, it shows your great manner about to give respect to others. Someone has rightly said, give encouragement to others is the most welcoming gift. For the result of it are lifted spirits and increased self-worth and hopeful future. A welcome with a sweet and warm smile is so pleasing. When it comes to the beautiful song, it's so appealing and heart-touching. So now we have our little Fidelians to welcome everyone with their sweet action song. Honor, gratitude, and hospitality. As different religions are being followed in India, and each one of them teaches to respect the guest. Atithi Devo Bhava. In Hinduism, guest is equal to a god. Now just
have a look at this welcome action song. Good morning, everyone. With love in our heart and a smile on your face, students of LKG welcome you all. Thank you. Get over here tonight. I'll call you what you like. We're making such a night to remember all our lives. You let me call you baby. I really blow your mind. Oh boy, I make you mine. That we're running out of time. Welcome, everybody come, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome. And begins the next program. Plants are the source of food, life and shelter. Many birds make their nests on trees. Here are students of LKG going to present a skit on the importance of plants.
They are giving the message to protect and preserve the trees and to spread happiness by making others happy. Now, the tiny tots of LKG are here to perform a skit. Ho, seeds ho, let's see how the magical seeds help everyone. When birdies meet just above the street, sing with lady. Sa, da dum da. One bird or two can maybe get through on the avenue. Manu the Mena was very sad. Somebody had cut down the tree where she lived. Her home was gone. Oh, I can't find my house. Ila, where is her house? No, Nadu, I can't. Manu sat on the stump of the tree in the bright sun, feeling hot. She did not know what to do. Where do we go? Where do we sleep? Cuckoo the Koyal saw her as she was flying by and came down to say hello. Hi friends, why are you so sad? I was flying by and saw you all are flying. What happened? Somebody fell down my tree. I don't know what to do. Wait for me. I might have something for you. Manu the Mena hopped around singing a song to cheer herself up while she waited for Cuckoo to return. Sometimes I'm happy, sometimes I'm sad, sometimes I'm frustrated, feeling bad, sometimes I'm excited, sometimes I'm blue, sometimes I'm bored. Don't know what to do. Ela the earthworm, Binny the butterfly, and Busy the bee also came to chat with Manu. They lived on the same tree, and when someone cut it down, they had also lost their homes. Cuckoo soon returned with something big and brown in her hand. What is it? It's a seed. It's a magical seed. If you plant it, it will grow into a big tree. I know it, Betty. Yes, it's blue. Will it be able to grow fast? Will it be tall and nice? How thick will it be? Will it be round like a circle? Will it be triangle like a Christmas tree? Wait and watch. Wait and watch. But it will take some time. So it is plastic. I will dig a hole in the ground. I am ready to dig that. Cuckoo planted the seed in the hole. Then Manu covered the hole with the soil again. Say what we get of the seed. We will water the seed. Then they waited and
and waited some more. Then they grew a little tired of waiting as night was beginning to fall. It's right, so please come to my house. In the night, under the ground, a little magic happened. One little shoot peeped out from the seed and pushed itself up and up through the ground. The shoot grew thicker and taller and taller. It became a big, strong tree and spread out its branches. When morning came, everybody was surprised to see a huge big tree. Wow, beautiful tree. I will build my new nest on this tree. I love my new house. Yummy. I will eagerly. Everybody was very happy. They thanked Cuckoo for their beautiful new home. Thank you, Cuckoo, for such a beautiful house. Happiness is something if you give it away. You give it away. You give it away. Happiness is something if you give it away. Then it comes right back to you. Oh, it's just like a magic penny. Hold on tight and you won't get any. Let it spend it, give it away. Then it comes right back to you. Love is something if you give it away. You give it away. You give it away. Love is something if you give it away. Then it comes right back to you. Oh, it's just like a magic penny. Hold on tight and you won't get any. Lend it, spend it, give it away. Then it comes right back to you. It's true. Happiness is something, if you give it away, it will come back to you. Amazing act, amazing dancing steps, amazing costumes. Wow, you have really worked hard, dear children. I'm sure you will make the world a place by being in it. Better place by being in it. Someone has said, somewhere inside all of us is the power to change the world. And it's true for you, dear little ones, as you have that power. Give a big round of applause for our little artists. Parents are a blessing of to every child. A mother is the first teacher in every child's life. Parents teach their children to make differences between good and evil, pure and impure, right and wrong. Parenting is not an easy task. Being a parent is one of the most demanding and challenging roles to take on. Parenting involves many responsibilities, such as taking care of children, teaching them what they need to know and guiding them. It's a need to an art to love your child unconditionally and understand them. So here is a Qawwali presentation by our tiny tots. अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तोलना आसमान बाकी है.
ये परवाने आए हैं, कुछ सुनने और कुछ सुनाने आए हैं। कुछ फरियाद और कुछ पैगाम लाए हैं, शिकायतें आज ये सरे आम लाए हैं। अपनी अपनी बातें मनवाने आए हैं। आपस में चिड़ी देखो आज ऐसी जंग है, ये हमसे तंग है, हम तुमसे तंग है। आपस में चिड़ी देखो आज ऐसी जंग है, ये हमसे तंग है, हम तुमसे तंग है। जीने का सोचो सबका अपना अपना ढंग है, ये हमसे तंग है, हम तुमसे तंग है। जीने का सोचो सबका अपना अपना ढंग है, ये हमसे तंग है, हम तुमसे तंग है। ये हमसे तंग है, हम तुमसे तंग है। ये हमसे तंग है, हम तुमसे तंग है। बयां कीजिए अपनी परेशानियों को, हाल दिल और इनकी नादानियों को। आप किन बातों से जुझलाते हैं, आप किन बातों से जुझलाते हैं। चलिए आज पहले उन्हें ही सुझाते हैं। पहले आजान पर खाना पकाते हैं, ये नवाज़ाते हैं, शौक से नहीं खाते हैं। हमें पता है आप क्या क्या पकाते हो, टिफिन में घिया तोरी टिंडे सजाते हो। बिना बात के यूं नखरे दिखाते हो, बेवजह हमें यूं ही सताते हो, बेवजह हमें यूं ही सताते हो। जब हम छोटे थे तो सब कुछ खाते थे, तुम बर्गर पिज्जा के पीछे ललचाते हो। अजी सुनिए ना, आप साग सब्जियां इसलिए खाते थे, क्योंकि आपके जमाने में सबवे स्विगी के ऑर्डर ऑनलाइन नहीं आते थे। रखिए खाने पीने और शॉपिंग को एक साइड, चलिए डालते हैं पढ़ाई पर लाइमलाइट। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, यही आपसे हमारा अब सवाल है। ये सारी बातें हमसे मनवाते हैं, अब ना जाने क्यों फिर भी हम लाते हैं, अब ना जाने क्यों फिर भी हम लाते हैं। आप दिन में तारीख हमें दिखाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स हमारे दिमाग में गोल 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 घूम जाते हैं। भाईजान गोल गोल नहीं, गोल मोल हो जाते हैं। नंबरों के पीछे हमको भगाते हो, उसके बाद ट्यूशन भी लगवाते हो, फिर भी पढ़ के रट लगाते हो। हमारा मुकाबला एक दूसरे से करवाते हो, उधर हमारा पहचान नहीं पाते हो, उधर हमारा पहचान नहीं पाते हो। पढ़ते हो, इतना पढ़ के जरा से नंबर तुम लाते हो। सच तो ये है कि मोबाइल और टीवी में तुम खो जाते हो। मोबाइल की ना कीजिए कोई बात आज, वरना खुल जाएंगे आपके छुपे राज। व्हाट्सएप फेसबुक से होता है आपके दिन का आगाज। है ना ये सेल्फी लेने का अंदाज, क्यों अम्मी? इन्हीं बातों से हो रही खुशियाँ बेरंग है, हम इनसे तंग है, हम इनसे तंग है। आपस में चिड़ी देखो आज ऐसी जंग है, ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है, ये हमसे तंग है, हम इनसे तंग है। गौर फरमाइएगा, अब हम भी कुछ बतलाते हैं, जिंदगी का फलसफा आपको समझाते हैं। इरशाद, इरशाद, इरशाद। आप सही
सही हैं, आप भी सही हैं। दरअसल उम्र का फासला यही है, जो चलता आ रहा है बरसों से, नहीं बदल सकता कल या परसों से। ये हमारी ही डोर की पतंग है, हम इनके संग है, ये हमारे संग है। जीवन में इनसे ही बस उमंग है, हम इनके संग है, ये हमारे संग है। वाह वाह, बहुत खूब लिटिल अंदाज। इन कलाकारों के हौसलों की बुलंदियों को हवा दीजिए। नए नए फूल खिले हैं, इन्हें मकबूलियत की दुआ दीजिए। ऐसे ही रंग जमाते रहे। इनके लिए आशीर्वाद में जोर से तालियां बजा दीजिए। Now we have the glamorous event of Fashion Fiesta, where style is the language, innovation is the medium, and little ones of our school are supermodels. It can be difficult to articulate the power of style and fashion through words. Fashion is a part of daily air and it changes all the time with all the events. You can even see the approaching of revolution in clothes. So now, our children are going to present a fashion show. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना? ओ सालिमा, ओ सालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना? ओ सालिमा, ओ सालिमा। हमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाज़त ली है। मुझे भी इश्क का किसी किसी को आता है, जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हम यारों। बात
बड़ी शादी है, बड़ी मंजिल है। Hey! सपनों में रोज आए, जिंदगी में आना, अब जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना। सपनों में रोज आए, जिंदगी में आना सनम। Wow! What a fantastic performance. Put your hands together one more time. Mr. Atul Kumar Srivastava on the stage to enrich all of us by your golden words. नमस्ते। ओह, क्या परफॉर्मेंस, स्पीचलेस। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू टीचर्स who prepared them. Thank you all. Thank you parents, thank you father, and thank you Ashoka ji, and thank you staff of St. Fidelis. Such a marvelous performance did by all the children. आज एक्सप्रेशन डे था। बच्चों, आप लोग इस उम्र में नहीं हैं कि आपको उपदेश दिया जाए, लेकिन मैं अभिभूत हूं और मुझे बिल्कुल ये कल्पना नहीं थी कि ये बच्चे इस कदर इतने शानदार तरीके से परफॉर्म करेंगे। क्रेडिट गोज टू ऑल द टीचर्स, स्टाफ एंड पेरेंट्स। बच्चों, यकीन मानिए, आपकी उम्र में हम इतने कॉन्फिडेंट, इतने एक्सप्रेसिव और इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। बहुत ईमानदारी से मैं कहूँ, आज की पीढ़ी देख के पता लगती है कि कितने ये स्मार्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं और सबसे बड़ी बात कितने कॉन्फिडेंट हैं। अब मैंने कहा कि बच्चों को उपदेश देने वाली उम्र नहीं है, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन चंद बातें मैं कहना चाहता हूं। बच्चों जैसी ABCD, ABC
सिर्फ आप 3 चीजें सुधार लीजिए। और हम सबका फर्क भी है कि टीचर्स का भी है और गार्जियंस का भी है, स्कूल का है और सोसाइटी का है, कि बच्चों की ABC सही कर दे, बाकी हर चीजें सही हो जाएंगी। जेड तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। एटीट्यूड, नजरिया क्या हो? पॉजिटिव एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव। कहते बी पॉजिटिव यार, तो बी पॉजिटिव यार कोई ऐसा मामूली लफ्ज नहीं है कि बच्चों में सकारात्मक सोच पैदा करना, पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना, ये बड़ा जरूरी है। और बच्चों में ये पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे पैदा हो, सकारात्मक सोच कैसे पैदा हो? क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाले हम ही लोग हैं, हम ही उन्हें नेगेटिव करते हैं। हर बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर पैदा होता है, ये मान लीजिए। किसी भी बच्चे में कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता बचपन से। नेगेटिव एटीट्यूड हम उसमें जो भरते हैं, ये गिर जाएगा, तुम सड़क पे एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम अकेले ना जाओ, ये ठीक है, आप केयर करिए, लेकिन बच्चों को कॉन्फिडेंट होने दीजिए, उनमें सकारात्मक सोच करिए। आप बच्चों को बताइए कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अब ये बात अलग है कि भाई हर बच्चे की क्षमता होती है कि बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा जो हम ना कर पाए हों जिंदगी में, जो हमने अचीव ना किया हो, वो बच्चे कर लें। अपनी इच्छाओं को या अपने एम्बिशंस को थोपना जो है, तो ये हम गार्जियन का ज़्यादातर गार्जियन यही करते हैं कि बच्चे की रुचि नहीं होती है, फिर भी जबरदस्ती का, तो वो कहते हैं ना कि बच्चों के हाथों में 4 सितारे रहने दो, 4 किताबें पढ़ के भी हम जैसे हो जाएंगे। तो नन्हे हाथों को जो 4 सितारे छूने दीजिए, कि हर आदमी चाहता, हर गार्जियन चाहता है कि उसका बच्चा न्यूटन हो जाए। अरे न्यूटन होने आप देंगे तब तो न्यूटन होगा वो। न्यूटन कैसे पैदा हुआ था? न्यूटन कोई ऐसा नहीं था, कोई एकदम बिल्कुल आम बच्चा था ऐसे बच्चों की तरह से, बल्कि हो सकता है इनसे कम इंटेलिजेंट रहा हो, इनसे कम स्मार्ट रहा हो, इनसे कम कॉन्फिडेंट रहा हो। लेकिन न्यूटन कैसे हुआ कि न्यूटन की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो न्यूटन को बगीचे में खेलने की इजाजत थी। न्यूटन सेब के बगीचे में बैठा हुआ था अकेले, सेब उसके सर पे गिरा जो, तब उसने सोचा कि यहाँ कोई ताकत है जो खींचती है, पावर ऑफ ग्रेविटेशन। हम बच्चे को खेलने देते कहीं गए किसी बगीचे में ले जाते हैं कि माफ करिएगा, आज के स्कूल कंक्रीट के जंगलों में बन रहे हैं, न पेड़ न पौधे न तारे न सितारे। बच्चों को मुझको लगता है शायद पहली पोयम जो है कि हिंदी में मछली जल की रानी और अंग्रेजी में ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाते हैं। अरे ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाने की जरूरत क्या है भाई? आसमान दिखा दो ना रात में दिखाइए बच्चों को आसमान अंधेरा करके। और अब तो इतना अंधेरा भी नहीं रहता कि आसमान साफ दिखाई दे। आप कहीं ले जाइए, बच्चों को दिखाइए, दे आर ट्विंकलिंग स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, सी योर नेकेड आई। आप दिखाइए। अब बच्चों को बहुत मामूली चीजें पता नहीं होती जो। किंडरगार्टन का मतलब ही है कि आप कि नेचर के बीच में रह के और नेचुरली आप शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन हमने इतना बच्चों को आर्टिफिशियल बना दिया है, इतनी रोशनी की चकाचौंध में, इतनी किताबों के बोझ के तले, इतने आप अपनी आकांक्षाओं के, अपनी आशाओं, अपनी उम्मीदों के बोझ के तले बच्चों को दबा दिया है कि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हो पाता है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि बच्चों का एटीट्यूड जो पॉजिटिव हो। बी, मैंने 3 चीजों की बात कही थी। बी, बिहेवियर। और ये भी मामूली बात नहीं है। बच्चों का बिहेवियर कैसा हो कि हम में से बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा एग्रेसिव है, बड़ा तोड़ फोड़ मचाता है।
कि जो कुछ कहते हैं वो सुनता नहीं है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम बच्चे के बिहेवियर को कूल करें। हर बच्चा जो बहुत एनर्जेटिक होता है, आपको पता है कि बच्चा जो है जिसको कहते हैं कि एकदम बिल्कुल एटॉमिक एक रिएक्टर की तरह उसके भीतर बहुत ऊर्जा का बहुत ही जोश भरा होता है, बच्चे में ऊर्जा रहती है, शक्ति रहती है, तो वो बिल्कुल मचलता है। लेकिन उस ऊर्जा को जब हम सही दिशा देंगे, सही दिशा में बच्चे कहेंगे कोई काम नहीं। बहुत सारे गार्जियन रहते होते हैं कि बच्चों कहते हैं बिल्कुल काम ना करो, बिल्कुल नहीं, इसको घरेलू काम, इसको कोई बर्तन मत उठाने दीजिए, कोई काम मत करने दीजिए, कोई सफाई का, दिवाली आ रही मत लगाओ। तो ये ज्यादा प्यार, एक अमेरिकी में आथर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तानी पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों से प्रेम नहीं करते थे, डोंट लव देयर चाइल्ड। वो क्या करते, बच्चों से मोह। अब बच्चों से प्रेम करना और बच्चों से मोह, अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कि जब आप अपने बच्चों से मोह करने लगते हो, तब आप उनको जो सही शिक्षा है, सही नसीहत है या सही जो डिसिप्लिन है वो नहीं देते। उससे क्या होता क्या है कि बच्चे के बिहेवियर या बच्चे की एनर्जी को आप डाइवर्ट नहीं करते। डाइवर्ट कैसे करेंगे? उनको छोटे छोटे काम दीजिए। क्या आप पौधे लगाते हैं तो आप पौधों में कहिए पानी आप दो, बेशक लाओ, छोटे जग से लाओ, मग से लाइए, आप पानी दीजिए। बच्चों की एनर्जी का उपयोग कीजिए आप। तो जब इस पावर हाउस का उपयोग करेंगे तो बच्चे का बिहेवियर भी अपने आप जो सुधरेगा, पॉजिटिव होगा और सही और सकारात्मक दिशा में जाएगा। और थर्ड, सी फॉर कैरेक्टर। अब कैरेक्टर आपको सबको पता है कि कैरेक्टर, चरित्र बच्चे का कुछ होता नहीं है। बच्चे बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी जैसे बच्चों का जीवन होता है। क्यों? वो जैसे भी आप अपने हाथों से उसको जो भी साचा चाहे वो गढ़ सकते हैं। आप दिया बना सकते हैं, आप डेमन की जो है कोई मूर्ति बना सकते हैं, ये आपके हाथ में। बच्चे अनगढ़ होते हैं, बिल्कुल आप जैसे गढ़ेंगे वैसे जो है ढल जाएंगे उसी साचे में। अब कैरेक्टर बच्चे को रिप्रेजेंट नहीं करता। कैरेक्टर जो है उसकी पूरी अपब्रिंगिंग को, उसके फादर मदर के कैरेक्टर को। हम सोचते हैं घर में हम खूब लड़ाई कर लेंगे और बच्चा मेरा बड़ा पोलाइट होगा, तो ये अगर आप अपेक्षा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सही करते हैं। कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को कम से कम एक आइडियल, कि बच्चे कहें कि हाँ, माय फादर इज माय हीरो, माय मदर इज माय हीरो। तो बच्चे के सामने आदर्श जो है घर से ही, कि ओल्ड उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनको सिखाइए कि आप उनको रेस्पेक्ट करिए। कई बार होता है कि हम खुद जो है अपने पेरेंट्स को जो रेस्पेक्ट नहीं करते, हम सोचते हैं कि बच्चा जो है रेस्पेक्ट करेगा। तो ये घर की चीजें, ये बच्चा सोसाइटी में ले जाता है, समाज में ले जाता है। तो ये पूरा कैरेक्टर जो है कि उसकी पूरी अपब्रिंगिंग, उसके नॉरिशमेंट को और उसके पूरे खानदान की तहजीब को जो आगे ले जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि एक गार्जियन के तौर पर कि हम बच्चे को जो बिल्कुल ऐसी अच्छी शिक्षा दें, एक ऐसे आदर्श माता पिता के रूप में हम सामने आए कि बच्चा बिल्कुल कि बाहर भी वैसा बिहेवियर करे जैसा हम चाहते हैं, जिस तरीके से आदर्श बच्चा बने। और करते भी हैं, हमें तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन जो नहीं करते जो उनके लिए ये नसीहत है। जो स्कूल का काम उसके बाद शुरू होता है। और मैंने देखा कि बच्चों को किस तरीके से, कि आप सब ने किस तरीके से शिक्षित और दीक्षित किया। ये बच्चे को अभी फादर बता रहे थे कि इन बच्चों का एडमिशन सिर्फ 5 महीने पहले हुआ है। बताइए कि 5 महीने पहले जिन्होंने एडमिशन लिया हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने घर में ऐसा सिखाया होगा कि इस तरह से शानदार एक्ट करें और इतना एक्सीलेंटली यहाँ पर परफॉर्म करें। तो ये स्कूल को ये क्रेडिट जाता है। तो बच्चों को गढ़ने, उनको संवारने, उनको अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है।
तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके ये जिम्मेदारी निभाएं और बच्चों को देश का एक अच्छा नागरिक बनाएं। और एक्सप्रेशन डे आपको पता ही है, स्पीच और एक्सप्रेशन जो है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है। बच्चों ने किस तरह से एक्सप्रेस किया अपने आप को, एक फंडामेंटल राइट है एक्सप्रेशन, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, कि बोलना और एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस किसी भी माध्यम से हो सकता है, कि वो चाहे वो गीत के माध्यम से हो सकता है, संगीत के माध्यम से हो सकता है, कविता के माध्यम से हो सकता है, लेख के माध्यम से हो सकता है, कहानी के माध्यम से हो सकता है, कि भाषण के माध्यम से हो सकता है, पेंटिंग के जरिए हो सकता है, किसी कला के जरिए हो सकता है, कि भित्ति चित्र बनाने से हो सकता है। तो किसी भी माध्यम से बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि बच्चों को एक्सप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्सप्रेसिव हो। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि बच्चे पर आप अपनी अभिरुचियाँ थोपेंगे तो बच्चों की पर्सनालिटी बिखर जाएगी। बच्चों को बनने दीजिए तो उनमें सलाहियत है। हर बच्चे में कोई कोई खास बात होती है। किसी बच्चे में अच्छा पेंटर बनने का गुण होता है, किसी बच्चे में अच्छा वैज्ञानिक बनने का गुण होता है, किसी बच्चे में बहुत दूसरे किस्म की विधाओं में जाने का हुनर होता है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे की सलाहियत देखिए, उसमें कौन सा हुनर है। और आप देखिए हमारे वहाँ भी एक कार्यक्रम है, डॉक्टर कुमार विश्वास आ रहे हैं, अमर उजाला के कार्यक्रम है। तो डॉक्टर कुमार विश्वास आज की डेट में, मैं उनकी फीस में यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन एक कवि हैं, रचनाकार हैं, वो इतना ज़्यादा उनकी पेमेंट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो कोई वैज्ञानिक उनकी तनख्वाह उतनी तनख्वाह पाता होगा भारत का, या कोई इंजीनियर जो उतना पैसा लेता होगा। विक्रम सेठ हैं, एक लेखन की एक किताब के कितने पैसे मिलते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। कि मेहता हैं, तैयब जी हैं, और तमाम जो पेंटर हैं बड़े बड़े, जो उनकी एक एक कृति जो करोड़ों मिलती है। तो पेंटर मिलना कहाँ बुरा भाई। और हर जगह जो है ऊपर वाली सीट खाली है, तो टॉप पोस्ट होती है, हर जगह खाली है, आप उसको भरिए। तो आज के दिन मैं सिर्फ यही आह्वान करना चाहूँगा कि बच्चों, आपको ABC अपना सुधार लीजिए। हम सब का ये फर्ज है कि बच्चों के ABC सुधारने में योगदान दें। और आप सबने हमें बुलाए, मैं आप सबका आभारी हूँ। और मुझे तो ऐसा लगा कि आके स्टेज पर मैं भी बच्चों जैसा जो है यहाँ पर थिरकने लगूँ। और एक मुख्य अतिथि गर्मा होती है। अशोक जी आपको बुलाया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फादर, थैंक यू। Please come and honor our chief guest by presenting a memento as a token of appreciation. Thank you so much, sir. Dance is the hidden language of soul. We dance to express our feelings. We dance for hope. We dance to create dreams. Now it's time to call our twinkling dancers to rock the stage and bring a smile on the faces of the parents present here. Good morning everyone. We are going to present fusion dance which will colors in your life.
tú de alejar. He movido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y me has sentido toda mi vida con tu querer. हमें समझा न पहचाना जो तूने मुझसे कहा है सेñorita, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Señorita, yo quiero Marvelous performance. The dancers have held captive everyone with a fantastic poetry of footsteps. Thank you, dear shining stars. Please give all of the fantastic performers a big round of applause for their energy and rhythm. It's my privilege to invite our principal, Reverend Father Dr. Robert Verghese, who is a great source of inspiration for all of us, to kindly come on the stage and enlighten all of us by your words of wisdom. Honorable Chief Guest of this Expression Day, Mr. Atul, Vice Principals Father Kulkant and Sister Bensi, my dear parents, teachers and students. First and foremost, I take this opportunity to wish you all good morning. I would like to thank on behalf of Fidelian family, Mr. Atul, the Editor-in-Chief of Amar Ujala, for accepting our invitation and taking out his precious time coming over here and watching this program, and at the same time for giving a beautiful message to all of us. I request all of you to, on behalf of the Fidelian family, to give a huge round of applause to Mr. Atul. I would like to thank Reverend Father Kulkant and the Sister Bensi for taking care of this junior wing so well, taking care of all the academic and co-curricular activities so well. I request all of you to give a huge round of applause for them. आप लोगों को मालूम है 7-8 महीने पहले जब आप बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डे, जिसको इंटरव्यू सब लोग बोलते हैं, आप लोग के आए थे, तो उस समय कुछ बच्चे सो रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ शर्मा रहे थे, और आज आप लोगों ने देखा 5-6 महीने के अंदर ये बच्चे क्या बन गए हैं यहाँ पर. It's all because of the hard work put in by our teachers, and thus I request all of you to give a big round of applause to all the teachers. I have to thank God for blessing all of you with such a beautiful children, such a beautiful smile. मेरा पूरा टेंशन खत्म हो गया बच्चों को मुस्कुराते हुए और डांस करते हुए देखते हुए. So God has blessed all of you, dear parents, because He has given you such a lovely children, and they performed so well today. Big round of applause to all of you. Process of education has gone so much of transformation the last many years. Education जो है उसके अंदर काफी बदलाव आ गया है. हम लोग बोलते हैं एजुकेशन 1.0,
उसका मतलब ये है जो गुरुकुल शिक्षा जो पहले होता था, टीचर वॉज द ओनली वन हु हैड नॉलेज, टीचर के पास ही नॉलेज था और बच्चों को जिनके वो नॉलेज बच्चों को देते थे, बच्चों को और कोई सोर्स नहीं था नॉलेज मिलने का। उसको हम लोग गुरुकुल शिक्षा हम लोग कहते हैं, इसको एजुकेशन 1.0 कहते हैं। इसके कुछ सालों के बाद आया एजुकेशन 2.0। ये ऐसा समय है वहां पर इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गया और वहां पर पढ़ाई नॉट जस्ट व्हाट द टीचर गिव्स, उसके अलावा इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक विशेष शिक्षा उस समय स्टार्ट हुआ। और उस समय ऐसा नहीं कि केवल गुरु के पास ये नॉलेज थे, बट बच्चों ने भी अपना नॉलेज खुद ढूंढ निकालना शुरू कर दिया। मशीन्स डेवलप हो गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, तो इसको एजुकेशन 2.0 कहते हैं। इसके बाद आ गया एजुकेशन 3.0। मेरा समय एजुकेशन 3.0 है। हम लोगों के सामने कंप्यूटर्स आ गए। जब हम लोगों ने पढ़ाई किया था, शुरुआत किया था, उस समय कोई कंप्यूटर के बारे में हमें मालूम ही नहीं था और धीरे धीरे हम लोग कॉलेज पे आ गए। उस समय हम कंप्यूटर के बारे में सुनना शुरू हो गया और उस समय का एजुकेशन, जैसे एजुकेशन 3.0 स्टार्ट हुआ, उस समय काफी परिवर्तन आ गए एजुकेशन में। सब लोग एजुकेशन के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। अभी क्या होगा, अभी पूरा मशीन आने शुरू हो गए, तो फिर क्या पढ़ाई करना है। रिपीटेटिव जॉब्स जो होता है वो मशीन करने लगे। अगर फावड़ा से खुदाई करना है वो मशीन करने लगे। तो बहुत चेंजेस आना शुरू हो गया हमारे समय में। इसको एजुकेशन 3.0 कहते हैं। और आज जो एजुकेशन चल रहा है इसको एजुकेशन 4.0 कहते हैं। 4.0 का मतलब यह है, यहां पर इंटरनेट स्टार्ट हुआ, www. स्टार्ट हुआ, काफी परिवर्तन आ गए। और जो ये बच्चे जो है आज जो स्टेज पे आ गए, ये बच्चे एजुकेशन 4.0 के बच्चे हैं। इन बच्चों को हम लोग एजुकेशनिस्ट कहते हैं, डिजिटल नेटिव्स कहते हैं। डिजिटल नेटिव्स हम लोग कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं मदर टंग में बच्चों को सिखाना चाहिए। आज इन बच्चों को मदर टंग ना केवल हिंदी है, दूसरा एक और मदर टंग आ गया। कोई बता सकते हैं? डिजिटल लैंग्वेज। डिजिटल लैंग्वेज ये उनका मदर टंग है, दूसरा मदर टंग है। हम लोग अक्सर बात करते हैं मदर टंग हिंदी या इंग्लिश या और कोई लैंग्वेज, बट दूसरा एक और मदर टंग जो बिना नॉलेज, बिना बाहरी दिखावे से बच्चों के अंदर डेवलप हो रहा है, वो है डिजिटल लैंग्वेज। 2 दिन पहले की बात है, मेरा कुक सुबह सुबह कम से कम 6:30 बजे नाश्ता तैयार कर रहे थे मेरे लिए, और उनका बच्चा मेरे विचार से 2.5 years old, वो बच्चा जमीन पे पुट वन बेडशीट, बच्चा लेटा हुआ है और मोबाइल लेकर के वीडियो सर्च कर रहे हैं उसमें। 2.5 years old। इनके माँ बाप मे बी 10th या 8th तक पढ़े हैं और छोटा सा एक मोबाइल है, एंड दिस चाइल्ड गोइंग ऑन सर्चिंग द कौन सा वीडियो, कार्टून कौन सा अच्छा है, एंड लेट करके। ये है डिजिटल नेटिव्स। ये जो बच्चे, आपके बच्चे डिजिटल नेटिव्स है और इनका दूसरा मदर टंग है डिजिटल लैंग्वेज है। इन बच्चों को डील करना आसान नहीं है। पुरानी तकनीक से, पुराना मेथड से हम लोग इन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम फेल हो जाएंगे। आप लोगों को आपके घर में, यू योरसेल्फ नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डील विद दिस चिल्ड्रन। पहले क्या होता था, बच्चे को थोड़ा डराओ तो काम होता था। अभी डराने से कुछ नहीं होता, वो मुस्कुराएगा केवल। क्या हो गया आपको, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सो इन बच्चों को हम पुराने मेथड से हम सिखा नहीं सकते। एक नया मेथड से हमें इन बच्चों को डील करना है।
क्लासरूम में टीचर्स भी परेशान है इन बच्चों को डील करना, क्योंकि हम सब लोग पुराना मेथड सीख के आए हैं कंट्रोल करने के लिए। तो टीचर्स भी परेशान है, कैसे कंट्रोल करें इनको? टच नहीं कर सकते, टच कर लिया तो केस लग गया, कुछ बोल दिया तो केस आ गया। तो कैसे डील करें? आपको खुद मालूम है आपके घर में इन बच्चों, एक बच्चे को आपको कितना तकलीफ है कंट्रोल करने के लिए। नहाने के लिए इधर बुलाएगा तो उधर दौड़ता है, पहले नहाने के लिए बुलाया तो वो पानी में जंग करते रहते हैं, अभी इधर बुलाएगा तो उधर जाएगा। तो आप लोग कितना परेशान है, हम लोग भी परेशान है, हमारे टीचर्स भी परेशान है, क्योंकि ये बच्चे डिजिटल नेटिव्स हैं। इनको डील करने के लिए अलग तरीके का एक सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा। हम लोग, आप लोग मालूम है, हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड के लोग नहीं है, हम लोग पूरा का पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड के हैं। हम लोग इस पर रिसर्च करते हैं और हम हमारे टीचर्स को तैयार करा रहे हैं किस प्रकार से इस डिजिटल नेटिव से हम डील करें। इतना आगे आ चुका है और आने वाले समय में जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन 5.0, एजुकेशन 5.0 आने वाला, ये बच्चे उसके कलाकार हैं। उन्हीं के सामने एजुकेशन 5.0 स्टार्ट होगा और उस समय के बच्चे क्या निकलेगा मुझे मालूम नहीं है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार का सिचुएशन आने वाला है। तो सेंट फिदेलिस स्कूल हम लोग कोशिश कर रहे हैं आज के इस डिजिटल नेटिव्स को हम किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से पढ़ाएं, किस प्रकार का शिक्षा दिया जाए। इस संदर्भ में आई वुड लाइक टू गिव सम गाइडेंस टू यू। आई हैव बीन ऑलवेज व्हेनेवर वी हैव मीटिंग्स, मैं क्लास लेता हूं टीचर्स का फॉर हाफ एन आवर एंड आई टेल देम हाउ टू डील विद दिस चिल्ड्रन, व्हाट आर द मेथड्स दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट। आप लोगों को भी कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा। आज ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप सब लोग एक साथ आए हैं, नहीं तो अकेले एक एक को बोलना पड़ता है। सबसे पहले सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? किसी से पूछेगा तो आप किस चीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई बोलेगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये किसी को एक दुकान है वो दूसरा दुकान खरीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट इन चीजों में करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस डिजिटल नेटिंग से आप लोगों को डील करना है तो सबसे पहले इन्वेस्ट ऑन योर चिल्ड्रन, योर टाइम, योर एनर्जी, आपका प्यार, सब चीजें बच्चों पे इन्वेस्ट करो। द टाइम हैज कम। आप लोग, हम लोग सोचते हैं पैसा हम कहां पर इन्वेस्ट करें, अभी इन्वेस्ट करने का टाइम है, बच्चों पे इन्वेस्ट करना है। इफ यू इन्वेस्ट ऑन चिल्ड्रन दे विल ब्रिंग यू 100-fold in the coming years. Secondly, you need to put your children for activities. आप लोग देखते होंगे स्कूल के बच्चे सुसाइड करते हैं, वे लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं। कुछ बच्चे जो सुसाइड करते हैं, कहा जाता है, रिसर्च कहते हैं कि ये बच्चे जल्दी डिसीजन लेते हैं, वो थोड़ा सोचता नहीं है, कुछ बोलते तुरंत ऊपर से जंप कर दिया या सुसाइड कर लिया। हम लोग न्यूज़पेपर में सब लोग पढ़ते हैं, ये बच्चे जल्दी डिसीजन वाले लोग हैं, बच्चे हैं, थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं। They don't want to take up any defeats, फेलियर को सही ढंग से नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे हैं जो डिजिटल नेटिव्स, ये एक अलग टाइप के बच्चे हैं। तो इसको, इनको डील करने के लिए the one of the best method is put them into activities, कल्चरल प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जो भी होता है आप इस पर अपने बच्चों को आप डाल दीजिए। मुझे बहुत खुशी है आप सब लोगों ने इस मंत्र को आप लोगों ने ऑलरेडी मैं कहने से पहले अपनाया है, एंड यू हैव अलाउड दिस चिल्ड्रन टू टेक पार्ट। बाय टेकिंग पार्ट इन दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बच्चे सीखेंगे फेलियर को झेलने के लिए, हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट्स इन लाइफ। Children will learn how to adjust in life. Children will learn to adjust according to the situation. पहले होता था अगर बच्चे को माइक नहीं मिले तो इधर रोना शुरू करते हैं, लेकिन अभी that is happening in children. So you need to first and foremost you need to invest your time, your money, your pyar on children. Secondly, put the children into activities. Thirdly,
हमारे स्कूल का एक डायरी है, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग इसको पढ़ते हैं, इंग्लिश में है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग एजुकेशनिस्ट है और हम समय समय पर कुछ नियम उसमें लिखते हैं हम लोग आपकी बच्चे की भलाई के लिए, because your children are very precious for us and we educationists we are planning how to, and one of the best method to communicate is through the diary. So diary में rules है, regulations है, checklist है, आदि चीजें लिखा दिया हुआ है, please read and follow it. And fourthly, cooperate with the school administration. We are not business people, we are educationists. हम 24 घंटे बच्चों के एजुकेशन, शिक्षा के बारे में हम सोचते हैं, and we want to give the best for you, best for all your children. So please do cooperate with the management, and I am confident we will make your children not just good, great. Once again, I would like to thank all of you for coming over here, putting your children for this program, and I'm sure you will enjoy this show, and please keep all of us in your prayers, and I also assure you my prayers. God bless you all. Thank you. Inspires dreams, encourages creativity, enhances confidence, instills the love of learning. It's very true that we all have to invest on our children. Thank you, dear Father, for your guidance and for your golden words of wisdom. Gratitude can transform common days with thanksgivings, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings. So now our tiny tots are ready for presenting vote of thanks. Now we the students are here to present vote of thanks. We would like to thank our esteemed chief guests who spared time from his busy schedule to grace the occasion. We would like to thank our manager, Reverend Father Joe Sakara, for being with us on this special day. We would like to present our special thanks to our beloved Principal Reverend Father Dr. Robert Burgess for being our mentor and for his guidance. We would like to thank our vice principal, Reverend Father Kulkar, for his constant help and support. Thank you. Thank you, our dear sister Nancy, for helping us at every step and each hour. Thank you. Thank you, Mommy and Papa, for coming and being supportive. We love you all. It has been very useful and bringing out our talent. Thank you, dear teacher. Thank you, Auntie and Uncle, for your help. This was indeed a very sweet gesture of the little angels. Every celebration has come to an end, but we rely on the faith that there is never an end, but always a beginning. Beginning of something new, beginning of something worthy, beginning of something inordinate. We want to thank you each and everyone for being a part of this celebration and making this day truly special. Let's give our little ones a huge round of applause for their amazing performances. Thank you all once again. I request you all kindly stand up for the school anthem, which will be followed by the national anthem. For the school anthem, keep your right hand on your heart.
ज्ञान दो, ज्ञान की धारा बहेगी, ज्ञान का सागर बहेगी। तम समाज ज्योतिर्गमय, तम समाज ज्योतिर्गमय, तम समाज ज्योतिर्गमय, तम समाज ज्योतिर्गमय। ज्ञान का दीपक जले, दूर हो अज्ञान द्वेष, प्रेम से मिलकर रहे हम, है यही अपना देश। ज्ञान सूर्य से सुवासित हो हमारा प्यारा देश। संत फिगर से स्कूल का है यही सबको संदेश, है यही सबको संदेश, है यही सबको संदेश। तम समाज ज्योतिर्गमय, तम समाज ज्योतिर्गमय, तम समाज ज्योतिर्गमय, तम समाज ज्योतिर्गमय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत